अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं दबंग न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अली भट्ट। नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं गुजरात शाहीन चौक में और मेरे बैग पे जो आपको नज़र आ रहा है कंटेनर, ये गंदगी का कंटेनर है। यहाँ पर लोगों के लिए रखा गया है कि इस कंटेनर में जो है वो जितना भी वेस्ट माल है यहाँ पर फेंका जाए, लेकिन ऐसा नामुमकिन था। लेकिन अभी मुझे नज़र आ रही है इस कंटेनर के आसपास जो बदबू थी वो भी उसमें भी कमी आई है और इसके आसपास जो कूड़ा करकट था उस भी नज़र नहीं आ रहा। ये तमाम चीज़ें जो हैं अंजुमन ताजरान नासिर महमूद खोखर शाहीन चौक जो अंजुमन ताजरान के सदर हैं, उन्हीं की मेहनत से ये सारा मामला पेश आया है। इस तमाम चीज़ें उन्होंने ये सफाई के मामला से बल्दिया के साथ मीटिंग करके इसको सफाई करवाई। इसी हवाला से हम दुकानदारों से भी जानेंगे जो शाहीन चौक अंजुमन ताजरान हैं और अंजुमन ताजरान शाहीन चौक के सदर जो नासिर महमूद खोखर साहब हैं, उनसे भी पूछा जाएगा कि ये मामला कैसे जो पेश आया, कैसी सोच आपकी आई इसको सफाई के हवाले से। जो बदबू आती थी जहाँ भैया राहगीर थे उनके हवाले से आपने सानिया पैदा की, ये आपकी सोच कैसे आई? जी मेरे कैमरा साथ मेरे साथ चलें। जी सर, ये दसो तुसी जनाब के थोड़ा कंटेनर पे थोड़े सामने दुकान है, ये पहले बड़ी गंदगी होती थी, हुण काफ़ी सारी कमी दी आई गंदगी की वजह है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦਗੀ ਸੀ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇ ਹਵਾ ਵਗੈਰਾ ਚਲਦੀ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੂੜਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਸੀ ਸਾਰਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਔਰ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਾਵਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਜਨਾਬ ਸਾਰਾ ਗੰਦਗੀ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਕੂੜਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਟਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸੇਫਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੇ ਮਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਧੁੱਪ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਸ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਖੜਿਆ ਵੀ, ਨਾ ਧੁੱਪ ਲਈ ਦੀ ਨਾ ਆਪਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਚੌਕ ਤੇ ਕੰਟੇਨਰ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੜੀ ਗੰਦਗੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੱਥੇ ਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਸਫਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ਇਹ ਨਾਸਿਰ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਸਫਾਈ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਸਿਰ ਮਹਿਮੂਦ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਾਸਿਰ ਮਹਿਮੂਦ ਖੋਖਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਚੌਕ ਦੇ ਸਦਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਫਾਈ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਕਰੋ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਫਾਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਉਂਝ ਵੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੰਦਗੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੇ, ਅੱਛਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਫਾਈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਨਿਸਫ ਈਮਾਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਬ ਸਫਾਈ ਕਰਾਓ, ਇੱਥੇ ਬੂਟੇ ਛੂਟੇ ਲਵਾਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਵਨ ਕਰਾਂਗੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਬੂਟੇ ਛੂਟੇ ਲੱਗਣ ਦੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇਗਾ ਆਇੰਦਾ ਤੋਂ ਤੇ ਅਨਕਰੀਬ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੜਾ ਗੰਦ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਬਦਬੂ ਬੜੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਰੇਹੜੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਾ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਫਾਈ ਕਰਾਈ ਸੀ ਅਸਲ ਤੇ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੈਨ ਖਲੋਣ ਆਏ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹ ਕੂੜਾ क्रिकेट बाहर फेंक दी, इसलिए उन्होंने कह कूड़ के खान उसमें डालने के लिए बोला था। फिर सफाई बदबू तो नहीं आ रही? नो बदबू नहीं आ रही अभी। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੰਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੰਟੇਨਰ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਛੱਡਦੇ ਹੋ? नहीं ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੰਟੇਨਰ 'ਚ ਸੁੱਟਣੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸਮ ਪਸੰਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਦੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਫਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਯਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੋ ਗੰਦ। ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠਾਕਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਸਫਾਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਫਾਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਸੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਫਾਈ ਰਵੇ, ਬਦਬੂ ਘੱਟ ਜੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। सफाई के हवाले ना थोड़ा कंटेनर आज सफाई नज़र आ रही है, बाहरों बदबू थोड़ी घट गई है। पहले काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, मतलब पहले जो सदर था उसी की तामन से हुआ है ना। सदर काफ़ी सुबह से लेकर शाम तक एक ही तवज्जो होती है उनके यहाँ पे, मतलब सफाई हर तरफ। पहले मतलब यहाँ से गुजरा नहीं जा रहा होता था, यहाँ पे पैसेंजर खड़े होते थे, इतनी बदबू आ रही होती थी, कोई इंतज़ाम नहीं था। आप देखें आपके सामने कितनी सफाई है यहाँ पे, कंटेनर भी साफ़ है, जगह भी साफ़ है, लोग मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। जब से सफाई का अच्छा इंतजाम हो रहा है ना, मतलब यहाँ पे पैसेंजर खड़े होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदर यहाँ पे अगर लेडीज़ खड़ी होती थी, कोई भी खड़ा होता था, मतलब बदबू आ रही होती, यहाँ तक बदबू आ रही होती थी, हमें इतनी स्मेल आ रही होती थी। जैसे आप दुकानदार हैं, अगर आपने तो इधर सुबह से शाम तक रुकना है, सारी सी बात है, हमें इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। अब सफाई का कितना अच्छा इंतजाम है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईजिली सब बच्चे सब बंदे यहाँ पे खड़े हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले कि यहाँ से गुजरना, वहाँ पे होटल पे भी जाना होता था ना, यहाँ से गुजरना बड़ा मुश्किल था। और उससे बड़ी बात तो यह है कि जब बारिश हो रही होती थी ना तो गुजरना बड़ा मुश्किल, इतनी बदबू, इतनी स्मेल। ये तो यहाँ की बात है, आस पास के मोहल्लों में जा रही होती थी।
और अब माशाल्लाह देखें आपके सामने कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तमाम जितने अंजुमन ताजरान आपकी नहीं बनी है या आप लोगों ने मिल के उन्हीं की दामन से ऐसा ही है। अब देखिए कितनी सफाई है, वहाँ पे रेडियो वाला ही बैठ के आके इतनी सफाई होने के बाद अगर पहले यहाँ पे गुजरना बड़ा मुश्किल था, अब इतनी सफाई होगी कि लोग बैठ के खाना भी पसंद करते हैं यहाँ। थैंक यू सर। बिल्कुल नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं अंजुमन ताजरान शहीन चौक नासिर महमूद खोखर साहब के साथ ऑफिस में उनमें, और इनसे भी वही गुफ्तगू होगी जो हम शहीन चौक की सफाई के हवाला से, जो कंटेनर के आसपास जो गंदगी है उसके हवाला से, हमारी मार्केट में जो अंजुमन ताजरान थी शहीन चौक के जितने भी दुकानदार थे उन लोगों से हमारी गुफ्तगू हुई। तो इसी हवाले से हम अब आए हैं सदर साहब का। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया सर आपका दबंग टीम को टाइम देने का। सर, हम ये जानना चाह रहे हैं कि बहुत सारी लोगों से हमारी गुफ्तगू हुई, तो इनको यही कहना था कि सदर साहब के ताउन से ये सारा मामला आया, तो ये कैसे सोच आपकी आई, कैसे आपको सूझी ये बात? अंजुमन ताजरान के और बहुत सारे मसाइल होते हैं, लेकिन आपने सबसे पहले प्रायोरिटी इस मसाइल को क्यों दी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब अली, बात ये है कि अल्लाह ताला का हुक्म है, सफाई निस्फ़ ईमान है। तो मैंने इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए कि एक तरफ आधा ईमान है और दूसरी तरफ सफाई निस्फ़ ईमान है, तो मेरे दिल में ये बात बैठ गई एक अरसा दराज से। तो मैंने फिर अल्लाह ताला के साथ वादा किया कि मैं अपनी सकत से ज़्यादा जहाँ भी मेरा घर होगा, मेरा ऑफिस होगा, वहाँ से मैं कम से कम सफाई के जो मामला आता है उनको दुरुस्त करवा के तो लोगों के अंदर शऊर डालूँगा कि आप लोग भी जो है अपने इर्द गिर्द मुआशरे की जो है वो सफाई करें। तो सफाई करवाने में मैं रात दिन कोशिश करता रहता हूँ, और ख़ास तौर पर जो गुजरात की बल्दिया है और डीसी साहब और ये जो जब से ये डिवीज़नल बना है तो जो कमिश्नर साहब हैं उनका भी मेरे साथ काफ़ी तावन है। जितनी दफ़ा मैं उनके यहाँ गया हूँ अपने मामलात लेके शहीन चौक के, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने तावन करते हुए फ़ौरन आर्डर दिया, और जिसकी वजह से मैं शहीन चौक में और ज़्यादा ताकत के साथ इस मामलात जो ये सफाई सराई के मामलात हैं उनको बेहतर करवाने में कामयाब हुआ हूँ। सदर साहब, आपकी कोई प्लानिंग भी है? आपने तो पहली प्रायोरिटी में सफाई के बहुत अच्छे इंतजाम कर लिए, हमने देखे हैं, हमने वहाँ पे खड़ा होकर देखा इस चीज़ को, हमने इस चीज़ को महसूस भी किया है, लेकिन क्या आगे आपकी कोई प्लानिंग भी है इस मामले में कुछ और करने की? हाँ, एक वामल नास जो मेरे शहीन चौक के दुकानदार हैं, ये कम से कम 250 दुकानदार बनते हैं, तो इनको चोरा चकारी से बचाने के लिए मैं और जो मेरा थाना शहीन है हम मिलकर सलाह के साथ जो है ना चौकीदार हमने रखे हैं रात के पहरे के लिए, जो कि सख्त मुश्किल तरीन काम है चौकीदार को रखाना और उसकी रिकवरी करवाना। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल से मैंने इस सिलसिले को चलाया हुआ है और अब भी मैंने चौकीदार रख दिए हैं। तो ये भी एक वामुल नास को नुकसान से बचाने के लिए ये भी एक बड़ा अच्छा कदम है जो मैंने उठाया है। तो आइंदा से मैं अब ये चाह रहा हूँ कि इन दुकानदारों के लिए जो पुल के ऊपर ये जो लाइटें लगी हुई हैं, ये गवर्नमेंट का, पाकिस्तान का फजूल सा सरमाया जो है ना ज़ाया हो रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ कमिश्नर साहब को मिलकर उनके साथ मुलाकात करके इन लाइटों को भी ऑन करवा दूँ, इसका भी फ़ायदा जो है ना वाम को होगा। सदर साहब, आपसे पहले जो सदर था, अभी आप भी सदर हैं, जो आपसे पहले सदर थे अंजुमन ताजरान शहीन चौक के, आपने वहाँ से ही कंटिन्यू किया चीज़ों को, या फिर आपने अपनी प्लानिंग, अपनी सब चीज़ें जो है ना वो लेके आ रहे हैं, सामने लेके आ रहे हैं? देखिए जी, बात यह है कि जो पहले यहाँ की अंजुमन बनी हुई थी, मेरे ख्याल से उन्होंने भी कोई कम कोशिश नहीं की होगी शहीन चौक के दुकानदारों के काम के लिए, लेकिन यहाँ अमली तौर पर जो काम करना पड़ता है ना उससे बंदे थक जाते हैं। तो मेरी एक आदत है, मैं अमली काम में थकता नहीं हूँ। जब तक मैं अमल करके दिखा ना लूँ तब तक मैं जो है ना अपना काम कोशिश करता रहता हूँ काम करवाने में। तो मेरे ख्याल है उन्होंने भी कोई काम नहीं किया होगा। तो जब मैंने देखा कि वो अंजुमन गैर फाल हो चुकी है, अब काम नहीं कर रही, तो फिर शहीन चौक के दुकानदारों के साथ मिलकर हमने एक अंजुमन जो नई बनाई, जिसका नाम हमने रखा अंजुमन ताजरान शहीन चौक। सदर साहब, ये बताइएगा कि आप समझ पा रहे हैं कि आप मौजूदा बतौर सदर शहीन चौक के जो दुकानदार हैं, अंजुमन ताजरान हैं, इनके जो काम हैं, जो इनके मसाइल हैं, इनको ऐसे तरीके से आप निपटा रहे हैं?
देखिए जी, बात ये है कि पाकिस्तान में दुकानदारों को साथ लेके चलना, उनके जो मसाइल हैं उनको हल करना बहुत दुश्वार काम है, इतना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, जितने मेरे दुकानदार हैं शहीन चौक के, उनकी ख़ास तौर पर उनके जो मामलात हैं, ख़ास तौर पर ये सफाई सुथराई के अक्सर होते हैं, इनको तो मैं देख रहा हूँ। इसके अलावा उनके कोई दुकानों के मसाइल बन जाएँ, उनको भी मैं देख रहा हूँ। और थाना कचहरी के उनके कोई मसाइल बने, अगर मेरे तक वो अपनी परेशानी लेके आता है तो मैं कोशिश करता हूँ उनको हल करवाने के लिए। यही एक सदर का रोल होना चाहिए। सदर साहब देखें, आपने एक खिदमत भी सेंटर बनाया हुआ है, खिदमत वेलफेयर की कमेटी भी आपके ज़ेरे से चल रही है सदारत। दूसरा कि आप अपना बिजनेस भी कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कैसे लेके चल रहे हैं? ख़ानदान भी आपका बहुत बड़ा है, उधर भी ज़ाहिर बात है गमी खुशी है वो आपके साथ है, आपका ख़ानदान भी है, ये कैसे चीज़ें सारी मैनेज कर रहे हैं? बात ये है कि अल्लाह ताला का एक ख़ास शुक्र है, मेरे 2 बेटे हैं और वो बहुत ज़िम्मेदार हैं, तो ज़्यादातर वो कारोबार को देख रहे हैं और मैं जो है ना गाए बगाए उनकी जो फिर मदद करता हूँ। जब काम का ज़्यादा रश पड़ जाता है तो मैं भी उनका हाथ बटाता हूँ। लेकिन इसके अलावा मैं अपने मखसूस टाइम रखे हुए हैं कि फ़लाँ जो टाइम होगा वो मैं अपनी फैमिली को दूंगा, फ़लाँ जो टाइम है वो मैं अपने कारोबार को दूंगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं अवामुल नास को टाइम दे रहा हूँ। सदर साहब, अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा किसी कमेटी के लिए, किसी वेलफेयर के लिए या अवामुन नास के लिए वक्फ करने का आपने सोचा हुआ है? इससे बड़ा क्या टाइम होगा कि मैंने 24 घंटे में से तकरीबन यही कहूँगा कि 18 घंटे जो है अवामुल नास के लिए ये वक्फ कर दिए हुए हैं। तो मैंने पिछले 7 साल से ये बेलौस खिदमत वेलफेयर सोसाइटी दारा कायम किया हुआ है और इस प्लेटफार्म से बेशुमार गरीब घराने हैं जिनको मैं मदद दे चुका हूँ, और अब भी जो जितना हो सकता है हम उन घरानों की मदद करते रहते हैं हर महीने। तो सदर साहब, ये जितनी भी आप हर माहाना लोगों की खिदमत कर रहे हैं, ये आपने जो आपके नुमाइंदे हैं, जो आपकी जो ये टीम है बनी हुई, सारी वेलफेयर बनी हुई है, जितने उसके मेंबर हैं, ये सारे वही लोग करते हैं या जैसे आसपास के जो कहता है जी मेरे पास भी कुछ ले लें, ऐसा भी निज़ाम कोई है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। बात यह है कि कोई भी वेलफेयर दारा चंद लोगों के साथ नहीं चलता, ना ही एक कबीना के साथ चलता है। वेलफेयर दारा तब भी चलता है बाहर के लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, जिनमें से मेरा काम है यूपीएस सोलर बैटरी का, तो मेरे कम से कम 2000 कस्टमर हैं माशाल्लाह शहर में और गिरदोनवा में। तो उनमें से बेशुमार ऐसे कस्टमर हैं जिनको मैंने कहा था कि मैं एक वेलफेयर दारा बनाया है और इसमें गरीबों के लिए आप कुछ जो फंड है मंथली मुकर्रर करें, तो उन्होंने इस दायरे को चला दिया फिर। तो ये वो लोग अपनी औकात के मुताबिक, अपनी सख्त के मुताबिक फंडिंग कर रहे हैं, तो ये दायरा चल रहा है, उन्हीं का फंड दिया हुआ हम ठीक जो हकदार होते हैं उन तक पहुँचाते हैं। बतौर सदर अंजमन ताजरान शहीन चौक नासिर महमूद खोखर साहब, अपने अंजमन ताजरान दुकानदारों के लिए मैसेज कन्वे करें दबंग न्यूज़ के प्लेटफार्म से। जी, मेरा अपने तमाम जो शहीन चौक के दुकानदार हैं उनको मैं अपनी तरफ से एक पैगाम देना चाहता हूँ। बात यह है कि आज सख्त महंगाई के दौर में अपने दुकानदारी के लिए टाइम निकालें और मुखलस होकर अपनी दुकानदारी को चलाएं, ताकि अपने कस्टमर के साथ भी आप मुखलसाना टाइम जो है वो गुजारें और अपनी हक लाल की कमाई से जो अपने बच्चों को वो लेके जाएं पैसा जो है, ताकि आपकी दुकानदारी में बरकत पड़े। आपकी इनकम में बरकत होगी तो इंशाल्लाह आपकी दुकान भी ठीक चलेंगी और आपकी जो है गाहकी वो भी ज़्यादा बढ़ेगी। तो इसके अलावा मेरा ये भी मशवरा है तमाम दुकानदारों को, अगर कोई नमाज़ पढ़ता है तो मज़ीद 5 वक़्त की पढ़े, जो नहीं पढ़ता तो वो नमाज़ शुरू करे और अल्लाह ताला के रसूल के लिए भी कुछ टाइम निकाले, तो इस तरह से उनकी ज़िंदगी भी बेहतरीन हो सकती है और मामलात भी ठीक हो सकते हैं। जी नाजरीन, ये थे मेरे साथ मौजूद सदर अंजमन ताजरान शहीन चौक नासिर महमूद खोखर साहब।
जिनका यही कहना था कि मैं 2-3 चीज़ें और भी साथ मैनेज कर रहा हूँ, और उनका यही कहना था कि मैंने 18 घंटे जो हैं वो अवाम नास की खिदमत के लिए जो है वो मखसूस किए हुए हैं। किसी को भी किस किस्म का मसला हो, अंजुमन ताजरान दुकानदारों को, तो मेरे पास आए, इंशाल्लाह हम उनको अल्लाह का नाम लेकर शुरू करेंगे। और काम तो मेरे अल्लाह ने करना है, वसीला बनना है, और जिस किसी को मसाइल मसले हों तो मैं हाज़िर हूँ। 24 घंटे मेरे ऑफिस में मैं मौजूद होता हूँ, तमाम लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं जी।